Hi, today we'll be discussing on genome sequencing and its significance. Our question is for today is belonging to GS3, that is discuss in brief genome sequencing and its significance. So we'll have to discuss in brief both genome sequencing and what is the importance and significance of genome sequencing. We have also have to throw some light on Indian initiative in this regard, if any. अगर इंडिया में जीनोम सीक्वेंसिंग को लेके कोई भी प्रमोशन या एक्टिविटी चल रही है, सो व्हाट आर दिस, इसको हमको डिस्कस करना है. सो लेट्स बिगिन आवर आंसर राइटिंग बेसिक फॉर्मेट विच वी ऑलवेज डिस्कस, दैट इज इंट्रो बॉडी कंक्लूजन. इंट्रो में वी विल राइट अबाउट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट जीनोम सीक्वेंसिंग. बॉडी में, बॉडी पार्ट में ऑफ आंसर we will discuss about the genomic process in brief. Then we will discuss the importance or significance of genome sequencing. Then if there are any challenges or issues related to genome sequencing and India में उसका क्या status है, which is the second part of our question. And lastly हमारा आएगा conclusion which will complete the answer. Let's begin the answer. Intro में we'll start with a definition. We can start either with the definition or with a recent development. Both of them are good. I have started as a model answer with a definition. Intro में genomic sequencing can be described as a laboratory method that is used to determine the entire genetic makeup of a specific organism or cell type. ये definition short and concise, if you can write down, very good. Otherwise you can also start with a recent development that is about Dr. Svante Pabo. He has recently been awarded Nobel Prize in Medicine for in the field of evolutionary genomics. So उसको हम एक बार brief में short में discussion में देखेंगे आगे चल के. For now, right now our aim is to understand genomic sequencing. So what is genomic sequences is our DNA is made up of basically 4 nucleotide or base pairs which we know, that is adenine, guanine, thymine and cytosine, AGTC. These couple with each other, A couple with T and G couples with C, and these long combinations of ATGC के जो long combinations होते हैं आपस में, this cumulatively forms our DNA, which basically encodes all the information in our body. ये हमारे बॉडी के सेल्स में क्रोमोसोम्स जो होते हैं, 23 pairs of chromosomes, उनमें प्रेजेंट होता है, एंड दैट बेसिकली डिफाइंड हाउ वी लुक, what we do, how we act, every information, every physiological or functional definition of our body has been coded into this DNA. So इस DNA की जो basically पूरी की पूरी linkage है, how these base pairs are organized, this sequencing, इसकी जो study होती है कि how these base pairs are organized in a particular individual, that is known as genomics. So ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नाम का एक प्रोजेक्ट 2001 में इनिशिएट हुआ था, जिसमें वर्ल्ड वाइड ह्यूमंस के कुछ सैंपल्स लेके डीएनए के उनको स्टडी किया गया था. और हमारे बॉडी में जो डीएनए में जो एक सीक्वेंस होती है बेस पेयर्स की, एजीटीसी को नॉर्मली टिपिकली जो एक कैरेक्टरिस्टिकली जनरली मिलती है एक जनरल पॉपुलेशन, हेल्दी पॉपुलेशन में, दैट इज़ कंसिडर्ड अ ह्यूमन जीनोम, रिप्रेजेंटेटिव ह्यूमन जीनोम. एंड ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने ह्यूमंस में मिलने वाले जो डीएनए की एक बेसिक सीक्वेंस है उसको मैप किया था. दिस प्रोजेक्ट वाज कमीशनड इन 2001. सो यू कैन आइदर स्टार्ट विद दिस लेबोरेटरी मेथड डेफिनेशन और कैन स्टार्ट विद डिस्क्राइबिंग अबाउट डीएनए and then keep on going to then move on to the defining genomic sequencing, or you can start with this recent example of Nobel Prize received by Dr. Svante Pabo for the evolutionary genomics field. So this was our intro. We will now move on to our body part में you can either define the genomic process, sequencing processes. I do not consider it extremely compulsory that you define on this process in this answer until and unless it is specifically being asked, which has very rare chances because technical concepts are very less often asked in order to elaborate technically. The question will be on lines in which you will be able to describe it, but just for the purpose of securing ourselves for writing some better answer, better content in answer, we'll be saying this. So this is a reference genome, this is an individual genome.
the procedure will remain the same. This is just a representative picture which shows ki how we compare any individual genome with the reference genome. Reference genome is the genome which is found in general population across healthy individuals, and individual genome is the genome which we are trying to compare with the reference representative population. So the whole genomic sequence process goes like this. We break up the whole DNA. This is the whole DNA of the representative human population. This DNA is broke up into multiple fragments. Then these fragments are basically cloned. इनमें से किसी भी एक जिस क्लोन को, जिस जीन को हमको स्टडी करना है, फॉर एग्जांपल इन दिस पिक्चर दिस येलो कलर्ड डीएनए फ्रेगमेंट हैज़ टू बी स्टडीड. इसमें एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होगी, हमको इसको स्टडी करना है. सो वी विल clone this down, we'll make a large amount of copies of this clone so as to get amplified version of DNA which we can see more visibly, more properly, and then after converting it into thousands of copies, we will use specific tools, softwares and observing machineries to observe the sequences in this DNA copy, and then we will basically map it. We will basically organize it in sequences one after the other in order to make the complete full sequence of the human DNA. So this is basically the basic process of whole genome sequencing. Whole genome sequencing means the genome sequencing of the whole DNA present in a chromosome. So first we broke the DNA. Again I am repeating the process. First we broke the DNA into pieces, into fragments. These fragments, among these fragments, the fragment which we need to sequence first, we clone it down. Then after cloning it, we copy it down. We make a large amount of copies of that clone, and we magnify, we amplify it to further generate the sequences via softwares we have developed. This is the process of whole genome sequencing. Same process will run in individual genome we are studying. For example, if we want to study a particular genome of a particular individual, we will perform the same process, and after the sequence of this individual is generated, we will compare it with the reference genome DNA to check for any kind of deviation. हम देखेंगे कि उन दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है. इस इंडिविजुअल में अगर हमको कोई अलग जीन मिलता है तो दैट विल शो कि इस इंडिविजुअल में थोड़े से कुछ डिफरेंसेस हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पॉपुलेशन. ये पता लगाने की हम कोशिश करते हैं इन जीनोम कंपैरिजन से. Next we move on to the importance of genome. Importance of genome sequencing. हम rare diseases जो हैं उनके causes पता लगा सकते हैं. Rare diseases are diseases which are found very rarely among individual in around 1 in 1 lakh population और 10 lakh population. इस टाइप के जो रेशियो में कोई डिसीज़ मिलती है तो उन डिसीज़ के कारण जो हैं हम इनसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं, कॉज फाइंड कर सकते हैं कि इनके किस जीन में डिफेक्ट है जिसके कारण ये डिसीज़ पर्टिकुलरली सिर्फ एक इस इंडिविजुअल मिलने में हेल्प मिलती है, या सॉरी दूसरे इंडिविजुअल में मिलती है. देन फाइंडिंग द मेथड टू ट्रीट कैंसर. कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनके जीन को अगर हम नॉर्मल सेल्स के जीनोम से कंपेयर करेंगे तो वी विल बी एबल टू फाइंड आउट the difference in the genome of normal and cancer cells, and then we can take a targeted approach. In future we are developing some techniques in which we can develop a targeted approach to treat this cancer disease via genomic targeting, via gene changes in the gene. Then treatment planning कर सकते हैं. अगर हमको किसी इंडिविजुअल में किसी जीनोमिक डिफेक्ट के कारण कोई डिसीज़ है, नॉट ड्यू टू द एनी अदर एक्सटर्नल प्रॉब्लम, तो हम उनमें जो जीन में डिफेक्ट है, जिस टाइप का जीन में डिफेक्ट होगा उस अकॉर्डिंग हम उसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं उस पेशेंट में. दैट विल बी द ट्रीटमेंट प्लानिंग. देन हम आते हैं एंडेमिक और पेंडेमिक में फिगर आउट करना कि कौन से वायरस या बैक्टीरिया के कारण एंडेमिक या पेंडेमिक स्प्रेड हो रही है. यू माइट बी नोइंग, हमारी गवर्नमेंट ने ऑफ इंडिया ने इंसाकॉग नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बॉडी सेट करी थी विच हैव द फंक्शन ऑफ continuously checking the different amounts of variants which have been developing of कोविड के कई वेरिएंट्स डेवलप हुए थे जैसे बीटा, ओमिक्रॉन, कापा. इन टाइप के वेरिएंट्स को हमने बेसिकली जीनोम सीक्वेंस करके ही डिटरमाइन किया था कि दे आर डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस, और उसके अकॉर्डिंगली हम फिर
किस पॉपुलेशन में क्या स्प्रेड हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे क्या मेजर लेना है, वो डिसीजन हम यहाँ ले सकते हैं. तो जीनोमिक सीक्वेंसिंग कैन ऑल्सो हेल्प अस इन मैनेजमेंट ऑफ एंडेमिक और पेंडेमिक्स. देन वी कैन मूव ऑन टू एग्री रिसर्च. कमर्शियल क्रॉप्स जो होती हैं उनमें हमको प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए जीनोमिक्स में अगर हम जीन में चेंजेस कुछ करें तो उनकी हम एफिशिएंसी और यील्ड बढ़ा सकते हैं क्रॉप्स की. एंड दैट इज़ वाई एग्रीकल्चरल रिसर्च में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जीनोमिक सीक्वेंसिंग विल फर्दर फ्यूचर इट विल हेल्प अस इन इम्प्रूविंग आवर एग्रीकल्चरल यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी. आपने बीटी कॉटन का नाम सुना होगा. बीटी कॉटन इज़ नथिंग बट कॉटन के प्लांट में कुछ जीन्स में जो चेंज करे गए हैं, दैट इज़ बीटी कॉटन, द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द कॉटन प्लांट, genetically modified GM crop, it is BT cotton. Then we move on to criminal management. You might have heard there is a bill which have been pending, that is a criminal identification amendment bill. Criminal identification amendment bill. This bill basically has been proposed, जिसमें जो क्रिमिनल्स हैं, जो भी एक्यूज या कन्विक्ट होते हैं, उनके DNA सैम्पल्स को भी जो है प्रिजर्व किया जाता है, सो दैट आगे चल के हम उनकी एक्टिविटीज़ को या क्रिमिनल के रिकॉर्ड्स में मेंटेन भी कर पाएँ और क्रिमिनल के एक्टिविटीज़ को मॉनिटर या सर्विलेंस के लिए भी रख पाएँ, सो दैट क्राइम्स का रेट हम थोड़ा सा कम कर पाएँ. सो दिस इज़ क्रिमिनल मैनेजमेंट. ये क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन बिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डू सी इट वंस ऑनलाइन, खुद से एक बार स्टडी इट. देन आते हैं म्यूटेशन एंड एवोल्यूशन को समझना. ह्यूमन लाइफ हैज़ बीन फिल्ड विथ, ह्यूमैनिटी इज हैज़ बीन फिल्ड विथ एवोल्यूशनरी चेंजेस. जो भी म्यूटेशन होते हैं जीन में, एवोल्यूशन होते हैं बॉडीज़ में, ह्यूमन बॉडीज़ में, ह्यूमन लाइफ में, उसको हम स्टडी कर सकते हैं जीनोमिक सीक्वेंसिंग के थ्रू बाय स्टडिंग द चेंजेस इन जीन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. देन ड्रग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इट कैन हेल्प अस. अगर हम जेनेटिकली डिसीज़ के जो हैं स्ट्रक्चर चेंज इसको स्टडी कर पाएँ, हम जीनोमिक सीक्वेंसेस से कुछ डिसीज़ के जो कॉजेज़ जो हैं वो डिटरमाइन कर पाएंगे, जबकि ये इस जीन के डिफेक्ट के कारण हो रहा है. तो जो ड्रग का डेवलपमेंट होगा वो भी उस तरह से होगा कि वो उस डिसीज़ को टारगेट करके ट्रीट कर पाए. देन वी कैन फाइंड आउट विच डिसीज़ेज आर कॉज्ड बाय चेंजेस इन जीन. So what we can find out the linkage between the diseases and gene. This will help us in further improving our medical facilities and medical services. Lastly, cloning. Cloning में आपने एक sheep के बारे में नाम सुना होगा जो जीन क्लोनिंग करके बनाई गई थी, that was Dolly. So आगे चल के हमको कभी भी एक कॉपी बनाना हो किसी की, एक क्लोन बनाना हो किसी का, तो जीनोमिक सीक्वेंसेस इज़ द मस्ट प्री कंडीशन फॉर दैट पर्पस. सो ये उसकी कुछ इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस हैं. इश्यूज़ एंड चैलेंजेस की बात कर लेते हैं. तो इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ एंड चैलेंजेस भी हैं. अगर हम जीन डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं तो डैट मीन्स वी कैन एलिमिनेट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विच अकर्स इन ह्यूमन बॉडी. सो दैट कैन अकर इन ह्यूमन बॉडी. सो यहाँ पे डिज़ाइनर बेबी का एक ट्रेंड शुरू हो जाएगा. पीपल विल वांट कि हम डॉक्टर्स के पास या फिर जीनोमिक लैब्स में जाएँ, हमारे जीन सीक्वेंसेस या हमारे जो एम्ब्रियोज़ हैं, उनके जो प्रेगनेंसी में जो एम्ब्रियोज़ हैं उसमें डीएनए की स्टडी कमीशन करें और उनमें डीएनए में जो भी इश्यूज़ हैं उसको करेक्ट करवा के एक परफेक्ट बच्चा पैदा करने की कोशिश करें. दैट इज़ कॉल्ड डिज़ाइनर बेबी. साइंटिस्ट कॉल दिस द मेथड ऑफ परफॉर्मिंग यूजेनिक्स. यूजेनिक्स मीन्स दैट यू ब्रीड पॉपुलेशन विच इज़ परफेक्ट जेनेटिकली. जिनके जीन परफेक्ट, जिनके डीएनए परफेक्ट, सिर्फ उन्हीं पॉपुलेशन को सरवाइव करने के लिए अलाउ करना चाहिए और उन्हीं पॉपुलेशन को ब्रीड करके परफेक्ट इंडिविजुअल जो फिज़िकली, मेंटली, आईक्यू और फिज़िकली दोनों एस्पेक्ट से परफेक्ट हों, सिर्फ हमको ऐसे ही बच्चे पैदा करना चाहिए. दैट विल हेल्प प्रोग्रेस ह्यूमैनिटी वंडरफुली एंड एलिमिनेट ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड. बट दे फॉरगेट कि इन वर्ल्ड साइंटिस्ट the high IQ scientists have made itself nuclear bomb, nuclear weapons, which have made which have made world more prone towards vulnerable and disaster. The scientists have developed machines, high IQ scientists have developed machines which have caused environmental problems of today. The industrial development
have caused environmental problems of today. So scientists do not consider this fact that this producing perfect man ideology will not be able to be successful always. What we need is people with sympathy and compassion more than people with high IQ in order to help progress humanity better. Then accessibility and affordability की बात आती है. हाँ, ये जो जेनोमिक्स की सर्विसेज हैं ये ऑब्वियसली सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है. मोस्ट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, मोस्ट पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू दी सर्विसेज, एंड जहाँ पे एक्सेस है भी वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज़ हैं. जीनोमिक सीक्वेंसिंग करना इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क एंड इट टेक्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ कॉस्ट एंड दैट इज़ पास्ड ऑन टू द consumers or the people who are trying to get health services. So accessibility and affordability का issue है. Then इनका misuse करने के लिए टेम्परिंग की जा सकती है इसके डाटा से. तो पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए डीएनए का जो भी डाटा है, जेनोमिक्स का जो भी डाटा है, उसका मिसयूज़ किया जा सकता है, पोटेंशियल मिसयूज़ फॉर द पर्पस ऑफ गेनिंग एडवांटेज ओवर अदर पार्टी. देन प्राइवेसी के इश्यूज़ हैं. हमारे यहाँ अभी भी प्राइवेसी का डाटा प्राइवेसी के नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स डेवलप नहीं हुए हैं. द डाटा प्राइवेसी विल हैज़ बीन विड्रॉन. सो उस केस में जो भी जीनोमिक्स का डाटा, जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी जीनोमिक्स का डाटा कलेक्ट करती है किसी इंडिविजुअल का, सो हाउ वुड इट मेंटेन द प्राइवेसी, इस पर कोई भी नॉर्म्स या रेगुलेशंस अभी भी डेवलप नहीं हुए हैं. और प्राइवेसी का वायलेशन होता है तो हु विल बी अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल? देयर आर नो सच सेटअप right now in place. Then scientific racism, people start comparing DNA of races across the world. Scientists will start to analyze the DNA in such an aspect that they will start to compare the DNA of Asians with Europeans, Europeans with Americans, Americans with Asians, Asians with Africans, and they will start a new theory of racism that जिनके डीएनए यूरोपियंस की तरह होते हैं वो ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं, जिनके डीएनए अफ्रीकन्स की तरफ होते हैं वो हमेशा पुअर या बैकवर्ड होते हैं, बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ जीनोमिक्स. जीनोमिक सीक्वेंसिंग करके वो दे विल टेल कि अफ्रीकन्स में इस टाइप का डीएनए मिलते हैं एंड जिसमें इस टाइप का डीएनए होगा वो हमेशा बैकवर्ड रहेगा, एंड या फिर अफ्रीकन्स रिमेन बैकवर्ड क्योंकि उनके जीन में या डीएनए में ये वाले डिफेक्ट हैं. सो दिस विल basically give rise to a theory of scientific racism. These are the issues and challenges related to genomics which have to be addressed before genomics comes into practice at a widespread scale. इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के स्टेटस में हमारे यहाँ 2 प्रोजेक्ट हैं जो अभी तक बड़े स्केल पे चलाए गए हैं. फर्स्ट इज़ CSIR, दैट इज़ काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने इंडिजन प्रोग्राम एक लॉन्च किया था, रन किया था अप्रैल 2019 से अक्टूबर 2019 तक. अक्टूबर 2019 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था. इस प्रोग्राम के अंदर में CSIR ने 1029 सेल्फ डिक्लेयर्ड हेल्दी इंडियंस अक्रॉस द कंट्री उनके सैंपल लिए थे और उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करी थी कंप्लीट. ये उनका एक रीज़न था कि जेनेटिक वेरिएशन जो है कंटेम्पोरेरी इंडियन सोसाइटी में अक्रॉस द कंट्री, उसका एक सैंपल स्टडी करना कि कितना वेरिएशन जीन में या डीएनए में अक्रॉस द कंट्री है सैंपल लेवल पे. एक सेकेंड प्रोजेक्ट है दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन 2020, दैट इज़ जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट. जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट इज़ अ कोलैबोरेशन ऑफ 20 इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कुछ IITs का कोलैबोरेशन है. इसका एम है इंडियन रेफरेंस जीनोम का एक अल्टीमेट ग्रिड बनाना. इशू इज़ जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ था 2001 में, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर में वर्ल्ड वाइड जो सैंपल्स हैं वो लिए गए थे, बट द सैंपल्स वर हैवली ड्रॉन इन फेवर ऑफ अपर मिडिल क्लास वाइट पीपल. 90 to 95% of sample which was used for generating the human genome, for doing the human genome sequencing, was taken from upper middle class white people across the world. So ये जो है जीनोम जो है वो पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट करता है वाइट पॉपुलेशन में क्या डीएनए मिलता है उसको. इट डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द डाइवर्सिटी प्रेजेंट अक्रॉस द वर्ल्ड. सो इस इंडियन जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का एम सेम है, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की लाइन पे ही लॉन्च किया गया है, जिसमें इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका रेफरेंस डीएनए जीनोम, रेफरेंस ह्यूमन जीनोम या फिर जीन की मैपिंग करने का हमारा एम है
और हमारे यहाँ जो डिसीज़ेज़ और ट्रेट मिलती हैं डाइवर्स इंडियन पॉपुलेशन में, उसका नेचर और टाइप अंडरस्टैंड करने का एम है थ्रू दिस इंडियन जीनोम स्टडी। इससे हमारे यहाँ जो मेडिसिन, एग्रीकल्चर और लाइफ साइंसेस में एफिशिएंसी जो है बढ़ जाएगी। हमारे जीनोम का रिकॉर्ड हमारे पास होगा तो इन फील्ड में उस रिसर्च का यूज़ किया जा पाएगा, और उसके यूज़ से हमारे यहाँ जो इन एरियाज़ में जो सर्विसेज हैं मेडिसिन, एग्रीकल्चर और लाइफ साइंसेज में, उनमें और ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी। इसके अंडर में फर्स्ट फेज़ में ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंडक्ट कर रहा है ये प्रोजेक्ट। इसके अंदर में डीबीटी जो है ये 10,000 सैंपल्स को कलेक्ट करेगा अक्रॉस द कंट्री, और उस जीनोम की जो भी जीनोम रेफरेंस जीनोम डेवलप होगा मैपिंग करके उससे एक ग्रिड बनाएगा, इंडियन ह्यूमन जीनोम ग्रिड। उसका फिर यूज़ होगा उन सर्विसेज को इम्प्रूव करने में। सो दीज आर द 2 प्रोजेक्ट्स यू नीड टू रिमेंबर। फर्स्ट इज़ इंडीजेन प्रोग्राम and second is Genome India project which has been taken in India. Conclusion की बात करें तो conclusion में either you can write कि how diversity is important in considering as factor while doing any kind of genome sequencing. India for example is the second largest country in terms of population density, जिसमें 1.3 billion individuals हैं which encompass 17% of the world population. इतनी रिच जेनेटिक डाइवर्सिटी होने के बाद भी ग्लोबल जीनोम स्टडीज़ जो भी हुई हैं आज तक, उसमें इंडिया अंडर रिप्रेजेंटेड है इन टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। सो आइदर यू कैन गो फॉर दिस कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग जो भी की जाती हैं दे शुड बी बेस्ड ऑन while considering the factors of diversity, only then it will be representative of the whole population across the world. जीनोम मैपिंग जो है वो करनी चाहिए प्रॉपरली और सिस्टमेटिकली इस तरह से कि वो हर पॉपुलेशन को उनके प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंट करे, एंड एक्सेस टू ऑल अप्रोच शुड बी डेवलप्ड. Ultimately, whatever is developed in the society is for the benefit of society, and if each and every individual is not able to gain it from benefits from that research outcome of that research and development, it is of no use to all. So access to all approach should be the basic principle in developing any research and development, in developing any kind of genomic sequencing in future. So this was the conclusion. We discussed in intro the definition. In the body part we discussed about the importance, significance, issues, challenges. The third part we discussed what is the status of genomic research in India, what are the projects being run by Government of India, and in conclusion we discussed how can we end the answer related to genomic sequencing. So I hope this answer is clear to you, genomic sequencing is clear to you, and I really hope that you know what to write in answer when it comes into the exam. Thank you very much for watching the video.